Even now, parts of Haryana remains gripped with tensions. It's nearly 4 days now that the new violence broke out. It spread to areas like Faridabad, Palwal, Gurgaon. These are areas that were disturbed, and we heard about shops being burnt in Badshahpur as well. These are areas in Haryana, very close to the national capital, that still remains tense. We hear that many of the migrant workers who come into Haryana, a lot of them now packing their bags, moving out of there because they feel threatened. That's how tense and delicate the situation is. Internet has been snapped until the next 2 days, so any kind of misinformation could be curbed. We also know that social media accounts have been cracked down on just to ensure that these kind of communal passions are not flamed. कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ। तुम्हारा नाम क्या है? मौसम मेरा नाम। कौन है? मौसम मेरा नाम। मौसम जी। क्या हुआ था? सर हमें मालूम नहीं। गोलियां कौन चला रहा था? हमने नहीं चले। तुम्हारा क्या नाम है? हाकम जी। गोली कौन चला रहा? कुछ पता ना सर, हमें कुछ पता ना। तो गोली कौन चला रहा था? गोली तबीयत खराब सर। अच्छा, नाम क्या है? ये बताओ कहाँ थे? घरे थे। पर अच्छा, तो कर क्या रहे थे? कौन किया बसों को आग की? नहीं पता जी, नहीं पता हमको। नहीं पता। ये देखिए, ये तमाम जो आरोपी हैं इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं। तुमने कहा क्या कर? सर हम घरे सो रहे। ऐसे थोड़ी ना होता। कौन किया? सर ये देखिए, पुलिस तमाम आरोपियों को यहाँ पर पकड़ के अंदर बिठाए हुए। कई सारे आरोपी हैं। कुल 137 गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से कुछ का रिमांड यहाँ पर पुलिस ने लिया है और इस वक्त वो नूह थाने में यहाँ पर मौजूद है और इनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। All right, those are our reporters, India Today and Aaj Tak reporters, who have managed to have that conversation with those very responsible for the riots. Here, they have been asked to sit in the station until the formalities are done. Of course, the police now trying to find out if there's a larger conspiracy behind the riots. So many of them have been apprehended. We believe nearly 116 people have been arrested in total, but yet the numbers could increase. At this point, Nuh is, of course, tense, and these are the first images that India Today has accessed of the police crackdown. Haryana government has gone on war footing to ensure that those people who were responsible for the riots are being pulled up. A good bunch of them who have been arrested, and now they're at the station. They've been asked to sit there. They've been detained. The arrest formalities will follow. In the meanwhile, our reporters have managed to get an entry there, have spoken to these accused, trying to get an understanding on what was the reason that led to these communal clashes. Were they directed by someone to do this? Himanshu Mishra is live with us. Let's cut across. Himanshu, if you're with us, please go on. Are you there, present? These are first images. यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं पुलिस स्टेशन से, इतने लोग अरेस्ट किए गए हैं, मगर ये है कौन? ये जो इन्होंने पत्थर मारे हैं या क्या यही लोग गन्स उठा के फायर किए हैं वहां पर? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त मैं नूह थाने के अंदर मौजूद हूं और यही देखिए, ये गेट है। अंदर उन आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। एक कमरे के अंदर आरोपी बैठे हुए थे। जब मुझे मौका मिला उनके पास जाकर के सवाल पूछने का, तो मैंने देखा कि सारे आरोपी थे और एक एक करके मैंने उनसे सवाल पूछने शुरू किए कि हिंसा के वक्त कहां थे। तो जाहिर तौर पर उन सबने अपनी ओर से डिनाइल करना शुरू किया। जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो हर सवाल के जवाब में नवीला, वो सिर्फ ना मैं मौजूद नहीं था, मैं घर पे था, ये वो कह रहे थे। लेकिन पुलिस अधिकारी से हमारी जो बात हुई तो उनका कहना था कि 137 गिरफ्तारी जो 45 एफआईआर की गई है, उसके बाद जो की गई है वो एविडेंसेस के आधार पर की गई है। अब 3 तरीके के एविडेंस पुलिस के पास है। एक तो विक्टिम्स के जो स्टेटमेंट है, नंबर 2 जो सीसीटीवी जगह जगह लगे हुए हैं, नंबर 3
जो वायरल वीडियोस हैं उसके आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की हैं। जाहिर तौर पे अब पुलिस की गिरफ्त में जब मौजूद है तो उनके सामने वो एफआईआर है, जिस एफआईआर में उनके अब नाम दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने जो एफआईआर किए थे उनमें किसी का नाम नहीं था, क्योंककि उस वक्त तक आरोपियों की पहचान नहीं हुई थी। लेकिन अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक एक करके चेहरे जब क्लियर हो रहे हैं, तो 137 गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से जो कुछ को हमें मौका मिला, क्योंकि पुलिस ने कोशिश की थी सभी के रिमांड पे लेने की, लेकिन सभी का रिमांड नहीं मिल पाया पुलिस को। कुछ का रिमांड मिला है, जिनसे अब पुलिस जो पता लगाने की कोशिश कर रही है, नंबर 1 उस वक्त की मौजूदगी, नंबर 2 क्या तुमसे किसी ने कहा था कि किस तरीके से तुम्हें पत्थरबाजी करनी है, फायर करना है या कुछ भी करना है, क्या हथियार कहीं एक जगह पर इकट्ठा था, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये जो इन्वेस्टिगेशन की पहलू है अलग अलग तरीके से है, और वो तमाम सवाल जो आरोपी हैं उनसे अब फिलहाल पुलिस पूछ रही है, उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है, उनसे डिटेल निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि केस की जांच आगे बढ़ाई जा सके कि क्या ये हिंसा अचानक से हुई या सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों ने इस हिंसा को अंजाम दिया। तो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स ये हैं जिस पे पुलिस काम कर रही है, और साथ ही साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया पर पहले से ही रैली से तकरीबन इस शोभा यात्रा के 10 दिन पहले से ही जो वायरल हो रही थी चीजें, या कोई अगर कोई कंटेंट डाल रहा था, तो पुलिस का कहना है कि उस पर भी उनकी नजर थी, और कई चीजों को डिलीट भी करवाया गया पुलिस की तरफ से, कि उसे डिलीट करवाया गया। नीचे जिस तरीके के थ्रेड होते हैं उनको डिलीट करवाया गया, क्योंकि कई जगह एंगर भी देखने को मिला था, तो पुलिस ने उन सब चीजों को हटवाया था, उनको वहां से डिलीट करवाया था। लेकिन चूंकि कई सारे अकाउंट होते हैं, पुलिस का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर वो जो लोग आइडेंटिफाइड है, एक तो उनके जो प्रोफाइल है उसको ट्रैक करती है, इसके अलावा जो उससे लिंक्ड प्रोफाइल होते हैं उनको ट्रैक करती है। हर एक प्रोफाइल को ट्रैक कर पाना जाहिर तौर पर संभव नहीं है, लेकिन यहां पर जहां तक हो सकता है पुलिस ने उसको ट्रैक किया। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पिछले कुछ दिनों में जब ये हिंसा हुई तो कोई नया सोशल मीडिया पर कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई इस तरीके का ग्रुप तो नहीं बना था। तो ये सारी चीजें अभी पुलिस जांच कर रही है। इनसे रिकवरी क्या हुई ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है जानने की, लेकिन इनके मोबाइल फोन कुछ के जरूर पुलिस के पास है, और वो एक बेहद अहम सुराग पुलिस के लिए साबित हो सकते हैं। उनसे उन मोबाइल फोन के जरिए पुलिस तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी इस मामले की।